Hello everyone. So I am Siddharth from Swastik classes, Siddharth Bhaiya. So we today have a very small session with two of our toppers from class 10 board exams who used to study with us and are also right now studying with us in class 11. So इन बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स में 10th के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं. So we thought we'll have a small session where we could talk to them about how did they go about their preparation specifically for class 10 board exams and in general as well. And hopefully that could be helpful for people who are preparing for board exams this year, and maybe for people who are preparing for other exams as well. So with that intention, we have kept this small session today. So I will begin with a small introduction from both the students. So Adya, how about you introduce yourself first? Okay, sir. I'm Adya, hi, and I scored 98 in science, 99 in maths, and 100 in each French, English, and social science. Okay. So Ria, how about you? Hi, my name is Ria, and I scored 98 in English, 97 in science, 99 in maths and social, and 100 in French. Okay, मैं अपने नहीं बताऊंगा अब इनके सुनने के बाद. बट कोई नहीं, मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, मुझे इतना पता है. तो आई थिंक that should be sufficient. So anyways, jokes apart, so we'll start with our few questions जो मुझे लगता है जिस पे Adya and Ria could throw some light, and it would be helpful for all the people, all the students who are preparing for board exams and other exams as well. So both of you just give us a little bit of a general idea. Ki again, obviously you gave your board exams for the first time. 12th में तो इंसान second time दे रहा होता है. 10th में it would have been a first time experience to give the board exam. So what was your general strategy like? As such, there was no strategy. कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि क्या करना है. बस it is like making timetables so that you can divide your time between what time you need to study and what time you need to spend on your recreational activities. And you should often take breaks between the studies. And when you are studying, then you should just study. Then don't think about anything else or what's going on outside or what is going on anywhere. So just focus on studies, and that's all. I think it would really help you. मेरी भी कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं थी, लेकिन बस एक चीज थी कि कोई भी ऐसा डे नहीं होना चाहिए जिसमें कोई भी काम नहीं किया हो. तो टोटली अनप्रोडक्टिव डे नहीं होना चाहिए. कम से कम कुछ पढ़ना चाहिए उस दिन, भले ही वो फेस्टिवल है उस दिन, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ पढ़ना चाहिए. That actually is a very important point. So great. So okay, that makes a lot of sense. I hope you other people are taking care of both these points. Moving on. So if I would ask board preparation ke specific, not other things, board preparation ke specific, what did you feel personally at your own level ki which subject did you find the most difficult? And I guess it जो subject आपको difficult लगा होगा वो in general भी लोगों को difficult लगता होगा. तो what kind of tips would you give to the students to how to score well in that particular subject? I found that French was the most difficult to prepare for, since I hadn't studied that well in 9th class for French. So suddenly I had to like cope up everything that I had not done in class 9th. So that was a little difficult to prepare for. उसको ग्रामर की एक्सरसाइज कर करके जो कि प्रैक्टिस बुक्स बहुत सारी मिलती है उसको करके वो जो गैप है उसको कम किया जा सकता है. प्लस साइंस का सब्जेक्ट, साइंस का पेपर था जो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगा था एग्जाम में, क्योंकि हमें बोला जाता है कि जो बोर्ड का पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा इजी होता है. प्लस स्कूल में भी बोलते हैं कि जो स्कूल में पेपर आ रहे हैं उससे ज़्यादा इजी होगा. तो लेकिन वैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था कि किया नहीं जा सकता, लेकिन जितना इजी हमें बोर्ड का पेपर बताया जाता है उतना इजी भी नहीं था. प्लस एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था विच थायराइड के बारे में, बायो से था. तो आई रिमेम्बर दैट हमें क्लास में वो पढ़ाया गया था, और मैंने अगर बोर्ड के पहले वो भी पढ़ा होता तो उसमें मार्क्स नहीं कटते.
मतलब मेरे को एसएसटी आई थिंक डिफिकल्ट नहीं बट लेंथी लगा था क्योंकि उसमें कोर्स बहुत ज्यादा था एंड आई थिंक एसएसटी सबको स्टार्टिंग से ही बनना चाहिए क्योंकि आपको उसे 2-3 बार अच्छे से लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इट इज लाइक आप एक दिन पढ़ोगे नेक्स्ट डे आप उसे भूल जाओगे तो एसएसटी आई वुड से स्टार्टिंग से ही अच्छे से करो एंड बायो ऑल्सो क्योंकि बायो का भी कोर्स ज्यादा है बाकी साइंस का पेपर जैसे आद्या ने कहा बहुत डिफिकल्ट तो नहीं बट हाँ डिफिकल्ट आया था क्योंकि वी एक्सपेक्ट कि साइंस का पेपर जनरली ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ आता है वो जल्दी खत्म हो जाता है बट उस टाइम वो थोड़ा डिफिकल्ट भी था एज इन क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे हमें आंसर पता था बट लैंग्वेज में हम थोड़ा फंस गए सब लोग और उस चक्कर में साइंस का पेपर लेंदी भी हो गया था बहुत ज्यादा मतलब सब लोगों ने आखिरी मोमेंट तक लिखा तो ठीक है मतलब अच्छा था. So any particular mistakes that you feel that you should have worked on maybe before the exam or during the exam? कुछ ऐसे particular mistakes आपको लगी हो जो बाद में realize होती हैं? आई वुड से मैथ्स में मैंने बहुत सिली मिस्टेक की उसमें एमसीक्यू में मैंने ए की वैल्यू बी में लिख दिया और बी की वैल्यू ए में तो उसकी वजह से मेरा वो 1 मार्क वहाँ कट गया सो मतलब जब रिवाइज कर रहे हो पेपर अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि वो मिस्टेक अच्छे मार्क्स है मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ बहुत कट गया बट वो अगर वो और आ जाता तो 100 आ जाते मैथ्स में तो बाकी सिली मिस्टेक्स पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं रिवीजन के टाइम पे. आई वुड से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने चाहिए क्योंकि जैसे जो मैंने बोला आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था वो मुझे बताया गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में और रीजन टू रीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिफरेंट हो जाते हैं तो आपको अपने रीजन के हिसाब से वो वाले क्वेश्चन पेपर्स लेके करने चाहिए. What would you suggest? How should students go about revising their subjects the exam से पहले या on the one day before the exam or maybe 1 month, 1 week before the exam? किस तरीके से बच्चों को रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? हमारी नॉर्मली हैबिट होती है कि हम जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं तो हम पहले चैप्टर से पहले पेज से पढ़ना शुरू करेंगे जो कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि नॉर्मली हमने पहला चैप्टर सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ा होता है तो उसके जगह पे आपको अपने वीक टॉपिक्स करने चाहिए और उसके बाद आपको पीछे से शुरू करना चाहिए नॉर्मली चैप्टर्स को रिवाइज करना क्योंकि वो वाले चैप्टर के सबसे कम टेस्ट हुए होते हैं और उसकी सबसे कम प्रिपरेशन होती है तो rather than going from starting to the ending हमें पीछे से शुरू करके फिर वापस आना चाहिए उन सब टॉपिक्स पे जो हमें अच्छे से आते हैं. रिविजन थ्योरी में आई वुड से कि जैसे 1 मंथ पहले आप पूरा कोर्स डिवाइड कर लो अपना कि हाँ आपको कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं एंड उसके हिसाब से आप अपने डेज डिवाइड करो कि हाँ आपको इतना टाइम लगेगा. बाकी रिविजन में आखिरी मोमेंट सब कुछ ऐसा फ्लिप ऑन कर लो एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट सब कुछ अपनी आंखों के सामने से निकाल लो जिससे आपको आखिरी मोमेंट पे ये ना लगे कि आपने वो रिवाइज नहीं किया था इसलिए आपको याद नहीं एग्जाम में. So next, I would like to ask, what kind of timetable did you people used to follow? Like कितने हम घंटे उसमें पढ़ाई कर रहे हैं और कितना ब्रेक्स ले रहे हैं, जब ब्रेक्स ले रहे हैं तो उसको कैसे स्पेंड कर रहे हैं, and so if you could throw some light on that. मैं कहूँगी कि टाइम टेबल तो मैंने मतलब आर वाइज डिवाइड नहीं किया था बट आई वुड डिसाइड कि डे में उस दिन क्या करना है पूरे में कि लाइक अगर फिजिक्स है तो आप 3 चैप्टर्स कर सकते हो उस डे में तो आप पूरा डिसाइड करो कि 3 चैप्टर्स करने ही हैं तो आपको उसका हर चीज करना है तो आप अपने हिसाब से कि आपको कौन से टॉपिक्स ज्यादा अच्छे से आते हैं और कौन से नहीं आते तो आप उसके हिसाब से अपना टाइम डिवाइड करके और कितना आपको टाइम डिवोट करना है उसके हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो. एंड ब्रेक्स में मैं जनरली सोई हूँ मतलब मेरे को सोना बहुत ज्यादा पसंद है और सो के मैं पूरा अपने आप को रिवाइव कर लेती हूँ तो मैं ब्रेक्स में सोई हूँ. बाकी आप लोग कुछ भी जैसे सोशल मीडिया है या कुछ है जिससे आप पूरा रिवाइव हो जाओ और आपको लगे कि हाँ आप उठ के वापस पढ़ सकते हो. ओके मैंने भी कोई फिक्स टाइम टेबल्स नहीं बनाए थे बट गोल्स थे कि इस डे के एंड तक ये चैप्टर खत्म होना चाहिए और इस वीक के एंड तक ये खत्म होना चाहिए. नॉर्मली मैंने जो मेरा पहला एग्जाम था उसके 2 वीक पहले वो किया था कि डिवाइड किया था कि कौन से मुझे चैप्टर्स अच्छे से नहीं आते उसको पर एक चैप्टर को एक डे दिया था और फिर उस डे के एंड तक मुझे वो टॉपिक ठीक से समझ आना मतलब आई एंश्योर दैट मुझे वो टॉपिक ठीक से समझ आए और सब कुछ उसके बारे में पता हो. और जो ब्रेक्स में आई यूज टू रीड और नॉर्मली जो एग्जाम आई रीड फिक्शन
तो एग्जाम के टाइम मैंने जो मैंने बुक्स पहले से पढ़ चुकी है उनको रीरीड किया था रादर देन नई बुक शुरू करने से, क्योंकि फिर उस पे सस्पेंस आ जाता है और फिर आप निकल नहीं पाते उससे. So I read books which I had already read before. So next question I have is related to a dilemma which a lot of students face. So both of you were studying with us in class 10 and of course हम लोग तो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन पे फोकस नहीं कर रहे होते हैं. We cover a lot of extra things as well. We talk about some foundational things as well for JEE later on. So उस चीज में अगर if I ask कि how did you manage specifically board preparation with all these extra things that you were doing, and does it create a significant impact, या हम बोर्ड की प्रिपरेशन में फोकस करने में हमें कहीं पे प्रॉब्लम होती है because of the extra things we're doing, or is it something helpful? So what thoughts do you have on that? मैथ्स और साइंस में तो हेल्प भी मिलती है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको अगर आप इंटरनल एग्जाम्स के पहले वो सब्जेक्ट्स पढ़ के जाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है. सो बेसिकली मैंने क्या किया था कि कोचिंग में जो मैथ साइंस कवर हो जाता था वो तो मोर देन इनफ था. और आई जस्ट इंश्योर्ड कि जैसे इंटरनल असेसमेंट्स होने वाले हैं तो उसके पहले मैंने एसएसटी और फ्रेंच और इंग्लिश भी पढ़ लिया, तो उससे कवर हो जाता है पूरा. बहुत होती है क्योंकि मैथ्स एंड साइंस भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है कोचिंग में, और वो लोग आपको एकते हैं तो आपकी थिंकिंग थॉट प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाता है. तो मैथ्स एंड साइंस में तो रियली बहुत हेल्प हुआ है. बाकी एसएसटी फ्रेंच और इंग्लिश में आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा स्टार्टिंग से. एंड मैथ्स एंड मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है, मतलब कोचिंग ज्वाइन करके. इट इज नॉट लाइक कि आपको 11th में आप हैबिट में आ जाते हो कि हाँ आपको कोचिंग जा रहे हो और काम करना है, नोट्स बनाने हैं, सब करना है, तो आपको अच्छे से हेल्प मिलती है 11th में. So any tricks to remaining focused throughout the year? है सिर्फ आपको ये सोचना है कि हाँ आपको पढ़ाई करनी है. अगर आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो आप आराम से पढ़ भी सकते हो. एंड रिजल्ट आने की बात की खुशी सोच के आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ अगर हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो हम सब लोग खुश होंगे, आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी उसको सोच के भी आप पढ़ने के लिए मोटिवेटेड रह सकते हो. नॉर्मली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत उससे उसको ओवरपावर कर लेता है उस अर्ज. तो मम्मा मेरे क्या करती थी, जैसे मेरा किंडल था तो वो थोड़ी देर के लिए छुपा के रख देती थी, तो वो नहीं डिस्ट्रैक्शंस नहीं होता था. Now that class 10 board exams are done, so what have you thought of doing after class 10? I'm preparing for JEE, so like we are at Swastik and the goal is prestigious, so you need to put that much effort and time to reach that. Okay, so fine. Ria, what are your plans and how are you coping up with your JEE preparation? JEE preparation is going well right now. Matlab, we are enjoying in Swastik classes and studying with Shobhit Bhaiya and Alok Bhaiya. And definitely it needs more effort and time also. और बाकी मतलब आद्या सही कह रही है कि हाँ गोल बहुत प्रेस्टिजियस है and इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ करना है. Hello, that is great. Let's hope that we are able to keep this motivation on for the next 2 years. So I think that's all for today. So I hope everybody who is listening or viewing this session, I hope you got to learn something from both our students, and I genuinely hope that you apply it in your studies and you are able to perform well. So with that, we'll end this session. Thanks a lot.